الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. تو ہمیں پڑھنا ہے آج گردان فعل ماضی معروف مثبت. گردان بولتے کانجوگیشن کو. ہاں، ایک کلاسیفیکیشن کرتے ہیں ہم اچھے سے، جہاں پہ ہم تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن، فرسٹ پرسن، غائب، مخاطب، متکلم کے بارے میں بناتے گردان کو. فعل ماضی کیا، پاسٹ ٹینس کیا یہ، لیکن ویسا پاسٹ ٹینس جو معروف ہوگا. جو کیا ہوگا؟ معروف. معروف کا مطلب ہوتا ہے ایکٹیو وائس، ہے نا؟ میں نے آپ سے کہا تھا معروف کا مطلب کیا ہوتا ہے، ایکٹیو وائس. اب اس ایکٹیو وائس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا تھا پچھلی بار کہ ایکٹیو وائس کا مطلب ہوتا ہے ویسی آواز. ایکٹیو وائس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ پتہ ہوتی ہے فائل کون ہے، جہاں پہ کام کرنے والا جو فائل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیا؟ نون. فائل ہوتا ہے نون. فائل معروف ہوتا ہے، معروف ہوتا ہے نون. ہم جانتے کہ کام کرنے والا کون ہے، تو وہی ویسے ہی فعل ہے یہ. لیکن فعل ماضی کی گردان ہے، پاسٹ ٹینس ہے. اور ایک بات، مثبت. مثبت کا مطلب ہوتا ہے پازیٹیو، جہاں پہ کام کا ہونا ثابت ہو جائے گا، کام ہو رہا ہے، اس کو بولتے ہیں مثبت. تو اب دیکھیں گے ہم ایسی اس کے بارے میں. یہ دیکھیے آپ، ٹھیک ہے؟ تو پہلے کیا بول رہا ہے یہاں پہ؟ پہلے یہاں پہ یہ بول رہا ہے فعلا. فعلا کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھیں گے. فعلا جو ہوتا ہے، دیکھیے یہاں سے اس نے بنائی تین کالمز اس نے. دیکھیے فرسٹ کالم ہے نا یہاں پہ، گردان لکھی ہے اس نے یہاں پہ. فرسٹ کالم گردان کی کالم ہے ساری، یہاں پہ گردان لکھی ہے اس نے. جو سیکنڈ کالم یہاں پہ، اس کو کیا ہو رہا ہے؟ پین کیوں نہیں لکھ رہا ہے اس کو؟ کیا میٹر ہے؟ ایک منٹ، ایسا کیوں ہو رہا ہوگا اس کو؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایک منٹ، پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو. کریں گے استعمال زوم کا ہی پین. ہاں، تو یہاں گردان لکھی ہے، یہاں پہ لکھا ہے سیغا. سیغا مطلب ہوتا ہے فارم. ٹھیک ہے، فارم. اور معنی کیا ہوتا ہے؟ میننگ. تو یہاں پہ کانجوگیشن، پھر فارم، پھر میننگ. اب دیکھیے، کیونکہ آپ کو یاد ہوں گے اب زمائر سارے، وہ کتنے آتے ہیں؟ 14 فارمز آتے ہیں، 14 سیغے آتے ہیں. دیکھیے کہ نہیں آپ؟ ہوا، ہما، ہم، تین. ہیا، ہما، ہن، کتنے ہو گئے؟ تین اور تین کتنے ہو گئے؟ چھ. انتا، انتما، انتم. ٹھیک ہے، انت، انتما، انتن کتنے ہو گئے؟ 12، ہے نا؟ اور چھ ہو گئے. انا، نحنو کتنے ہو گئے؟ 14. تو ویسے ہی انہیں 14 پروناؤنس کی بن جاتی ہے 14 ورب کانجوگیشن. وہ تھے ضمائر کانجوگیشن، وہ تھی ضمائر کی گردان، وہ گردان تھی ضمیر کی. اب بنائیں گے ہم فعل کی گردان. ٹھیک ہے، وہ بھی کتنے آ جائیں گے؟ 14. یہ دیکھیے آپ، یہ 14 آتے ہیں برابر. مانیے آپ لکھیں گے یہاں پہ سائڈ سائڈ میں وہ چیز بھی، ہوا، فعلا، اس نے کیا. دیکھیے، اس ایک مرد نے کیا زمانے گزشتہ میں، یعنی کہ پاسٹ میں اس نے کیا ہے. کسی ایک شخص نے پاسٹ میں کچھ کیا ہے، میں بولوں گا فعلا، اس نے کیا. اب یہ کیا ہے؟ جو فعلا ہے وہ کیا ہے؟ کوئی بول سکتا ہے؟ دیکھیے یہاں پہ اس نے لکھا ہے نا، جو فعلا ہے، یہ دیکھیے آپ، گردان فعل ماضی معروف. ایک تو فعلا فعل ماضی ہے تو پاسٹ ٹینس ہے، اتنا پتہ ہے آپ کو. اور یہ معروف ہے. معروف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ ایکٹیو وائس ہے. اب ایکٹیو وائس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ یہاں پہ کام کا، یہاں پہ پتہ ہے کام کس نے کیا ہے. یہاں پہ کام کرنے والا جو فائل ہے وہ نون ہے. ویئر فائل از نون. یہاں پہ فائل نون ہے. اور مثبت، یہ پازیٹیو بھی ہے کیونکہ یہاں پہ کام ہو رہا ہے. فعلا، اس ایک مرد نے کیا، لیکن زمانے گزشتہ میں ایسے بولیں گے فعلا، اس ایک مرد نے کیا. اب اس نے ایک اور کام یہاں پہ کیا ہے کہ اس نے یہاں پہ اچھے سے بنائیں گے ڈائگرام بھی. ڈائگرام نہیں، میں رہا ہوں ڈائگرام، یہ نا یہ سیغا لکھا ہے اس نے یہاں پہ. یہ کون سا فارم ہے؟ دیکھیے، ہے نا یہ واحد. پہلی بات، واحد مذکر. دیکھیے اس نے کیا لکھا ہے، اس نے کیسے لکھا ہے یہ چیز. آپ لائیے پہلے غائب کے سائڈ سے آپ آ جائیے، تب جا کر آپ کو سمجھ آئی جائے گی یہ چیز. پہلے کیا ہے؟ غائب. اب غائب یا تو مذکر ہوا ہے تو مونس ہوگا، ہے نا؟ تو اس نے غائب مذکر رکھا ہے یہاں سے، اور غائب مونس رکھا ہے یہ تین. اب غائب مذکر تو مفرد ہوگا، یا تو واحد ہوگا، یا تو مثنیٰ ہوگا، یا تثنیہ ہوگا، ڈیول فارم ہوگا، یا تو جمع ہوگا، ہے نا؟ ایسے ہی یہاں پر بھی واحد، تثنیہ، جمع، غائب کے، غائب مونس کے اندر. یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب دیکھیں گے ہم اس گردان کو ہمیں یاد کرنا ہے. فی الحال یہ چھ ہم یاد کریں گے جو غائب کے ہیں. یہ غائب مذکر کا ہے نا؟ اتنا سارا غائب مذکر کا ہے، کتنا سارا؟ یہاں سے یہاں تک اتنا سارا کیا ہے؟ غائب مونس کا. دیکھیں، فعلا، اس ایک مرد نے کیا، ہے نا؟ کافی اتنا. فعلا، اس ایک مرد نے کیا. اب مجھے بولا ہے ان دو مردوں نے کیا. دیکھیے ان دو مردوں نے کیا. اب ہوا تھا نا یہاں پہ، اب یہاں پہ کیا آ جائے گا؟ ہما.
है ना हुमा। अब देखिए हुमा में क्या होता है, अलिफ। यहाँ भी करेंगे आप ऐड अलिफ, फ़अला था ना, अलिफ लाएंगे आप साथ में। तो फ़अला फ़अला, क्या बोलेंगे आप, फ़अला फ़अला। फ़अला क्या होता है, उन दो मर्दों ने किया। फिर आप बोलेंगे फ़अलू, अब लाएंगे वाव इसके एंड पे। लेकिन वाव करता है पसंद कि मुझसे पहले पेश आना चाहिए। अब एक चीज़ याद सरफ के अंदर, अलिफ करता है पसंद कि मुझसे पहले ज़बर आनी चाहिए, या करता है पसंद कि मुझसे पहले ज़ेर आनी चाहिए, और वाव करता है पसंद कि मुझसे पहले पेश आना चाहिए। अलिफ करता है पसंद कि मुझसे पहले ज़बर आनी चाहिए, या करता है पसंद कि मुझसे पहले ज़ेर आनी चाहिए, और वाव करता है पसंद कि मुझसे पहले पेश आना चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे फ़अला फ़अला, यहाँ पे लाम पे क्या है, ज़बर। क्योंकि इसका अलिफ आ रहा है ना, अलिफ करता है पसंद कि मुझसे पहले ज़बर होनी चाहिए, है वहाँ पे ज़बर। फ़अला फ़अला, फ़अला फ़अला, उन दो मर्दों ने किया। अब क्या, फ़अलू, वाव करता है पसंद कि मुझसे पहले पेश होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, पेश, देखिए नाम पे। फ़अला, उस एक मर्द ने किया। फ़अला, उन दो मर्दों ने किया। फ़अलू, उन सब मर्दों ने किया। ये हर एक को याद होनी चाहिए, गर्दान। गर्दान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अरबिक। गर्दान याद होगी ना, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं याद, अरबी समझ पाएंगे आप कुछ भी। देखिए हम बताएं यहाँ पढ़ते वैसे फ्रूट्स के नेम क्या है, वेजिटेबल्स के नाम, सीजन्स के नाम, क्योंकि वो आसान है, वो खुद इंसान सीख जाता है। मसला है ग्रामर पढ़ना, ताकि आप खुद पढ़ाएंगे अरबी, ताकि आपको नाम भी समझ पाएंगे। तो देखिए फ़अला फ़अला फ़अलू, उस एक मर्द ने किया, उन दो मर्दों ने किया, उन सब मर्दों ने किया। ठीक है, फ़अला फ़अला फ़अलू, है ना आसान। अब देखिए अब गायब मुअन्नस के अंदर क्या करना है। अब मुझे बोला है उस एक औरत ने किया, लेफ्ट हैंड लाएंगे ना आप, पीछे की ओर ले जाएंगे गायब के लिए। अब हम बोलेंगे फ़अलत, क्या बोलेंगे, फ़अलत। अब यहाँ पे हम लाएंगे एंड पे ता, क्या लाएंगे, ता। इसका अपना अपना नाम है, इस अलिफ का अपना नाम है, वाव का अपना, वो मैं नहीं बोलूंगा, आप डर जाएंगे वरना। अफला गुडा करिए यार। फ़अलत, फ़अलत का मतलब होता है उस एक औरत ने किया। ये गायब मुअन्नस वाहिद का सेगा है, फॉर्म है, ऐसे। फ़अलत, उस एक औरत ने किया, है ना, ऐसे फ़अलत, उस एक औरत ने किया। अब मुझे बोला है उन दो औरतों ने किया, गायब में तो है मुअन्नस लेकिन तस्निया है, या मुसन्ना बोलेंगे, ड्यूअल फॉर्म, यानी कि थर्ड पर्सन फेमिनाइन ड्यूअल। तो आप हाथ पीछे ले जाएंगे, लेकिन आप बोलेंगे क्या, फ़अलता। अब आप लाएंगे ता पे ज़बर, क्यों, क्योंकि अलिफ करता है पसंद कि मुझसे पहले ज़बर होनी चाहिए। यहाँ पे ही गलती से हो गया इसको, यहाँ पे कुछ नहीं है। अच्छा इस पे ही है, सॉरी सॉरी, एक मिनट। ये ता पे ही है ना, खुदा इसको, ये पेन क्यों नहीं चल रहा है, इसका पेन चलता ही नहीं है ना इसका, अपने वाला ये जूम का पेन चलाना पड़ रहा है, एक मिनट। इसका हो रहा है ये, एक मिनट। नहीं क्या हो गया इसको, कौन सा, मिनट। चलेगा नहीं आज। देखिए यहाँ पे क्या है, फ़अलता, फ़अला, ये लाम पे और ये ता पे वाली ज़बर, ठीक है, ये अलिफ पे नहीं है। फ़अलता ऐसे। फ़अलता क्या होता है, उन दो औरतों ने किया। फ़अलत, उस एक औरत ने किया, गायब मोनस मुफरत का सेगा। फ़अलता, उन दो औरतों ने किया, गायब मोनस तस्निया या मुसन्ना का सेगा। फ़अलता, अब मुझे बोला उन सब औरतों ने किया। फ़अलन, फ़अलन। अब करना है कोटा स्टार्ट, याद करना, करिए कोटा याद। शाबाश। फ़अला फ़अला फ़अलू, उस एक मर्द ने किया, उन दो मर्दों ने किया, उन सब मर्दों ने किया। फ़अलत, उस एक औरत ने किया। फ़अलता, उन दो औरतों ने किया। फ़अलन, उन सब औरतों ने किया। करिए फिर से याद। शाबाश। फ़अला 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 फ़अलू, फ़अलत फ़अलता फ़अलन, फ़अला फ़अला फ़अलू, फ़अलत फ़अलता फ़अलन। इसको याद करना है। फ़अला फ़अला फ़अलू, फ़अलत फ़अलता फ़अलन। ठीक है, फ़अल फ़अल फ़अलू, फ़अलत फ़अलता फ़अलन, फ़अल फ़अल फ़अलू, फ़अलत फ़अलता फ़अलन। ऐसे खुद ही करना आपको याद, अब मैं आपको करा रहा हूँ याद भी, लेकिन असल में खुद ही याद करना चाहिए इंसान को। तो आप कल याद करके लाएंगे इंशाल्लाह। देखिए आज हो गए कुछ कम, आज हो गए 7 कम लगभग शायद ना, पिछ पर आए थे शायद 30 पढ़ने के लिए। तो अब जितने यहाँ पे हमको चाहिए वो पढ़ेंगे हर दिन इंशाल्लाह।
क्योंकि अभी मौका है ना पढ़ने का, फिर ज़िंदगी पे भरोसा नहीं होता है कब मौका मिल जाएगा इंसान को। अच्छा, फ़अल फ़अला फ़अलू, फ़अलत फ़अलता फ़अल, क्योंकि मैं सोचूंगा फिर मुझे पढ़ाना नहीं आता है। इंशाल्लाह मुझे आता है पढ़ाना, मुझे पता है इंशाल्लाह, लेकिन फिर भी नहीं आती, वरना मैं कहता हूँ कोशिश क्या है पूरा सिंपलिस्टिक हिसाब में बोलूँ, जितना मैं सिंपल बोलता हूँ उतना सिंपल। अच्छा, फ़अल फ़अला फ़अलू, फ़अलत फ़अलता फ़अलन, तो ऐसे होता है ये। या आपको याद हो गया होगा ना, फ़अल फ़अला फ़अलू, फ़अलत फ़अलता फ़अलना। अब बताइए समझ आ गया यहाँ तक, मैं जाऊँ आगे फिर? बताइए कि ज़्यादा हो रहा है एक साथ मैं बोल रहा हूँ, इतना याद करने के लिए फ़अल फ़अला फ़अल। बताइए ठीक हो रहा है कि मैं थोड़ा ज़्यादा बोल रहा हूँ? आ गया समझ, अलहमदिल्ला। अब जाएंगे और नीचे, अब देखिए, अब हो गए और छः से के, छः फॉर्म्स। ये देखिए, अब ये मुखातब के बारे में है ना, पहले था गायब थर्ड पर्सन, अब क्या है मुखातब, यानी कि सेकंड पर्सन। ये देखिए आप, मुखातब में भी होगा ना सेम वैसे जैसे हम बोल रहे थे पिछली बार से। हम बोल रहे थे कि जो मुखातब है, मुखातब जो है वो मुज़क्कर होता है, या मुखातब क्या हो सकता है, मुअन्नस। अब मुखातब मुज़क्कर में या तो मुफरद होगा, वाहिद होगा, या मुखातब मुज़क्कर में तस्निया होगा, या मुखातब मुज़क्कर में जमा होगा ना, वही सिंगुलर, प्लूरल, ड्यूअल और प्लूरल। और मुखातब मुअन्नस में वाहिद भी आ जाएगा, मुखातब मुअन्नस में तस्निया भी आ जाएगा, मुखातब मुअन्नस में जमा भी आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं मुखातब की गर्दानी, इतनी सारी ये छः। अब है ना मुखातब का सेकंड पर्सन, जो मेरे सामने कोई है, मैं उसे बोल रहा हूँ कुछ, मैं बोल रहा हूँ तू एक मर्द ने किया, पास्ट में ना। हम बोलेंगे फ़अल्ता, क्या बोलेंगे, एक काम आप करिए, आपको जगह ऐसे याद करना आसान, हम लिखेंगे यहाँ पे साइड ना गर्दान भी इसकी, तो पेन चल रहा है ये, इसको फिर करना पड़ता है जूम का पेन इस्तेमाल। इस पेन से मसला हो जाता है, इसमें लिखते हैं ना फिर चढ़ते ऊपर लिखावट भी चढ़ जाती है ऊपर। देखिए यहाँ पे ना ऐसे फ़अला लिखा है ना यहाँ पे, एक मिनट एक बार ट्राई करेंगे और चलेगा कि नहीं। वैसे चल क्यों नहीं रहा है, इसको क्या मसला हो गया होगा, मैंने इसको ना कुछ किया है। एक मिनट आप रुकिए, एक मिनट। गायब हो रहा है, इसके बाद देखिए गायब, छोड़िए इसको। देखिए फ़अल है ना, हुआ फ़अल, उस एक मर्द ने किया, हुमा फ़अला, उन दो मर्दों ने किया, हुम फ़अलू, उन सब मर्दों ने किया, है ना आसान। उसके बाद उस एक औरत ने किया, हम क्या बोलेंगे, हिया फ़अलत, क्या बोलेंगे हम, हिया फ़अलत। देखिए मसला क्या हो गया ना, वापस से मिटाना पड़ेगा उसको। ठीक है देखिए, हिया फ़अलत, उस एक औरत ने किया, हुमा फ़अलता, फिर हुन्ना फ़अलना। देखिए यहाँ पे नून आ रहा है, यहाँ पे नून आ रहा है, इस तरह से याद करना। देखिए आप क्या मुखातब की गर्दान है ना, यहाँ से इतना सारा मुखातब के बारे में हम बोल रहे हैं। अब मुझे बोलना है कि तुम एक मर्द ने किया, मुझे क्या बोल रहे हैं, मुझे बोलना है कि तुम एक मर्द ने किया, मैं बताऊंगा क्या, फ़अलता, जैसे यहाँ पे लिखा है देखिए, फ़अलता क्या होता है, तुम एक मर्द ने किया, फ़अलता मुखातब की गर्दान है, मुखातब में मुज़क्कर की गर्दान है ये, मुखातब मुज़क्कर मुफरत की गर्दान है ये, फ़अलता तुम एक मर्द ने किया, रिपीट अगेन गर्दान। देखिए फ़अलता, तुम एक मर्द ने किया, तू एक मर्द ने किया या तूने किया, फ़अल तुमा, तुम दो मर्दों ने किया, फ़अल तुम सब मर्दों ने किया। अब देखिए ना वैसी अंत फ़अलत, अंतुमा फ़अलतुमा, है ना वैसी, अंतुम फ़अलतुम, फिर ऐसी अंति, तुम एक औरत ने किया, शाबाश, अंति फ़अलति, तुम एक औरत ने किया, फिर अंतुमा फ़अलतुमा, तुम दो औरतों ने किया, फिर अंतुन फ़अलतुन, तुम सब औरतों ने किया, अंतुन फ़अलतुन। कितना आसान है ये देखिए। अब मुखातब की करता है ना ऐसे, अंत फ़अलत, अंतुमा फ़अलतुमा, अंतुम फ़अलतुम, अंति फ़अलति, अंतुमा फ़अलतुमा, अंतुन फ़अलतुन। है ना आसान, फिर से, अंत फ़अलत, अंतुमा फ़अलतुमा, अंतुम फ़अलतुम, अंति फ़अलति, अंतुमा फ़अलतुमा, अंतुन फ़अलतुन।
یہ تھی مخاطب کی گردان، یہ بھی آپ کو یاد کرنی ہے. ضمائر بھی ساتھ رکھنا ہے سر. ضمائر ساتھ ہاں رکھ سکتے ہیں ضمائر ساتھ. یہ بس سمجھانے کے لیے تھا. اس کے بعد دیکھیے اب یہاں پہ نیچے کیا لکھا ہے اس نے، ٹھیک ہے، تم سب فعلتن. اب مجھے بولا ہے میں نے کیا. انا، انا فعلت، میں نے کیا. تب وہاں پہ ہم انا استعمال کریں گے. یہ دیکھیے آپ یہاں پہ ایک منٹ دیکھیے. اگر ہم متکلم کا سیگا، متکلم میں کیونکہ ہم جانتے ہیں مذکر مونس کی قید نہیں ہوتی ہے، تو وہاں پہ دو ٹیبل نہیں بنانے، وہاں پہ خالی ایک ٹیبل بن جاتا ہے سب کچھ. دیکھیے مذکر مونس. اب متکلم اگر مذکر مونس ہے تو واحد، تثنیہ یا جمع. دیکھیے اگر متکلم واحد ہوگا، چاہے مذکر یا مونس ہے وہ، تو بولیے گے فعلتو. جیسے انا کے بارے میں بول دیتے ہیں، انا ہو گیا نا آئی. انا فعلتو، میں نے کیا. ایک مرد یا ایک عورت نے، ہے نا، یہاں فرق نہیں ہے اس کا مذکر مونس کا. فعلتو، میں نے کیا، چاہے مرد یا عورت. اب فعلنا میں کیا ہوتا ہے، یہاں پہ تسنیہ بھی آ جاتا ہے اور جمع بھی آ جاتا ہے یہاں پہ اسی فارم میں. متکلم چاہے مذکر یا مونس ہوگا، چاہے وہ تسنیہ یا جمع ہوگا، اس میں خالی فعلنا ہم بولتے ہیں. اب فعلنا کیا ہوتا ہے، ہم نے کیا، یعنی کہ ہم دو مردوں یا ہم دو عورتوں یا ہم سب مردوں یا ہم سب عورتوں نے کیا. وہ کیا ہوتا ہے فعلنا. یہ کرنا کو بہت تیز یاد کرنی ہے. ایسے کریں گے دیکھیے، فعل فعل فعلوا فعلت 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 فعلنا. ایسے کریں گے یاد. دیکھیے فعل فعل فعلوا فعلت 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 فعلنا. اس سے بھی تیز یاد کرنی ہے. ایسے فعل فعل فعلوا فعلت 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 فعلنا. ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہونی چاہیے کل ان شاء اللہ. اچھا آپ کو یاد ہے ہاں؟ تو آسان گردان ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. گردان تو آسان یاد کرنی ہے، لگتا ہے مشکل، بس ایک بار یاد کرنی ہے پھر اسی پیٹرن بنانی ہے باقی گردانے بھی. لیکن اب ہم پڑھیں گے نوٹ سے واپس ہی تاکہ آپ کو یاد رہے گی وہاں سے بھی. ایک منٹ میں تم کو نوٹس پہ لکھا تھا اچھے سے اس نے. کہاں پہ یہ وہ نوٹس. اگر میں تیز جا رہا ہوں نا، کبھی کبھی تیز جا رہا ہوں میں، ویسے میں تیز نہیں جاتا ہوں. میں نے پڑھی تھی والی کتاب یہی 10 دن میں شاید. تو مطلب جتنا میں نے عربی پڑھا نا آج تک، عربی میں نے پڑھا تھا وہ شاید یہی 2 3 مہینے میں، لیکن میں پڑھا تھا دن میں 4 گھنٹے عربی تھا اس ٹائم پہ. تب میں نے کتنی ساری کتابیں ختم 2 4 مہینے میں نا. یہ دروز، اجرمیہ، قطر الندى، صرف الصغیر. مجھے آتا ہے پھر جنون ایک ساتھ عربی کا. ایک منٹ کہاں پہ گئے. یہ رہا. سر اسے یاد کیوں کرنا ہے، کیونکہ نا امپورٹنٹ یاد کرنا ہے، کیونکہ اس کے اسی پیٹرن پہ بنائیں گے باقی گردانے. پھر باقی ورب کنجوگیشن بن جائیں گے ایسے ہی. پھر جہاں پہ قرآن میں آئے گی نا ایسے ہی آپ کو آئے گا سمجھ کے ٹھیک اچھا یہ والا فارم ہے، ٹھیک ٹھیک، اس کا مطلب اس لیے ایسا ہو گیا. یہ مسئلہ ہوتا ہے. اب مجھے دیکھنا ہے کہ کہاں پہ مل جائیں گے مجھے یہ نوٹ. ہاں یہاں پہ ہوگا نا یہ آن لائن میں اتنا حساب نہیں آتا پڑھانے میں. اتنا آن لائن میں اتنا حساب نہیں آتا ہے. ایسے کرنا پڑتا ہے، ویسے کرنا پڑتا ہے، تھوڑی خشک ٹوٹ جاتی ہے. ویسے پھر یہ چلتا ہے، نوٹ سے چلتا ہے. اگر نوٹس نہیں ہوگا تو ناممکن ہے عربی پڑھانا آن لائن. بڑا تو آف لائن ہی پہلے الف اکیڈمی کے اندر، لیکن پھر مجھے ٹائم کی قلت ہو گئی، بہت کالج جانا پڑتا تھا. اس سے میں نے پھر آن لائن ہی کیا سب کچھ اسٹارٹ پڑھانا. کہاں پہ گئے. تھوڑی خشک توڑتی ہے نا ایسے. لیکن آسان بھی ہوتا ہے بہت، پڑھانے والے کو بھی پڑھنے والوں کو بھی. ہاں پہ پہلے ماضی کی گردان کہاں پہ لکھی ہے اس نے. ہاں یہ رہی. یہ دیکھیے آپ گردان اس نے یہاں پہ لکھی ہے اچھے سے. سمجھایا بھی اس نے اچھے سے یہاں پہ اس ٹیبل میں. تو آپ کو سمجھ آ جائے گا یہ پہ ان شاء اللہ. دیکھیے آپ کانجوگیشن آف پاسٹ ٹینس ورب. کانجوگیشن آف پاسٹ ٹینس ورب گردان فعل ماضی کے بارے میں سے یہاں پہ لکھا ہے. اس سے پہلے زمانے کے بارے میں لکھا ہے. ہوا کیا ہوتا ہے ہی. ہما کیا ہوتا ہے دے ٹو. ہم کیا ہوتا ہے دے مور دین ٹو. ہیا کیا ہوتا ہے شی، وہ ایک عورت. ہما کیا ہوتا ہے دے ٹو فیمیلس. اور ہننا کیا ہوتا ہے دے مور دین ٹو فیمیلس. پھر انتا کیا ہوتا ہے تم ایک مرد. انتما تم دو مرد. انتم تم سب مرد. انتے تم ایک عورت. انتما تم دو عورتیں. انتن تم سب عورتیں. انا میں، نحنو ہم. اب بنائیں گے ہم ایسی کس کے بارے میں. اب بنائیں گے ہم ایسے ہی فعل کے بارے میں. دیکھیے مجھے بولنا ہے وہ ایک نکلا. میں بولوں گا خرج. خرج کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک نکلا. آپ لکھ سکتے ہیں کاپی پہ نا، یہ لکھیے آپ.
जैसे यहाँ पे लिखा होगा वैसे हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए। ज़हबा का मतलब होता है ही लेफ्ट, वो गया। जलसा का मतलब होता है वो बैठ गया, ही सैट। नसरा का मतलब होता है उसने मदद की, उसने नुसरत की, ही हेल्प्ड। समीआ का मतलब होता है ही हर्ड, उसने सुना। करूमा का मतलब होता है वो बुजुर्ग बन गया, ही बिकेम नोबल। ये आपको याद होना चाहिए कल। ذهب، जलस، नसरा، समीआ। सर जब यूट्यूब पे पढ़ते हैं ना, उस पे अच्छे से समझ नहीं है ही नहीं आता है, क्यों? शायद सवाल जवाब नहीं कर पाते इसलिए। देखिए, ज़हबा वो गया, जलसा वो बैठ गया, नसरा उसने मदद की, समीआ उसने सुना, करूमा वो इकराम वाला बन गया, वो इज्जत वाला बन गया। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है कल इंशाल्लाह। अब देखिए, अब यहाँ से गर्दन के बारे में देखेंगे, अब इसकी एनाटमी के बारे में देखेंगे, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे अच्छे से हम। नोट्स आपके पास है ना, आपको पीडीएफ भी है, आपको काम करना भी जरूरी नहीं है, आपको करना ही सही। देखिए, खरजा का मतलब क्या होता है? वो एक मर्द निकला, खरजा वो एक मर्द निकला, ठीक है। यहाँ अब रखी चीज याद, इसको सफिक्स यहाँ पे क्या है? सफिक्स क्या होता है? मतलब सफिक्स तो जो हम करते हैं बाद में ऐड, है ना। और प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स जो हम करते हैं पहले ऐड। तो खरजा के अंदर जो सफिक्स है वो क्या है? कुछ भी नहीं, मतलब खरजा के बाद कुछ नहीं आ रहा है, तो इसको आप लिखेंगे यहाँ पे जो फाइल है ना, फाइल। क्योंकि जो सफिक्स आता है ना यहाँ पे, सफिक्स वो होता है फाइल, वही होता है फाइल, काम करने वाला। बस गोटा करना है यार फिलहाल। तो वो यहाँ पे क्या है? मुस्ततिर, छुपा हुआ, ठीक है, खरजा में। खरजा जो है, खरजा खरजा वो दो मर्द निकले, तो यहाँ पे जो अलिफ है ना, वो फाइल है, इसको बोलते हैं फाइल। और जो ये अलिफ यहाँ पे ऐड हो गया ना, ये ऐड कर रहे थे ना जरूरी हमें, फ़अला फ़अला, खरजा खरजा वो दो मर्द निकले। अब मुझे बोला है वो सब मर्द निकले, वो सब मर्द निकले, तो मैं क्या बोलूंगा? खरजू। अलम तरा इल्लल्लज़ीना खरज, क्या वो, खरजू वहुम उलूफुन हज़र अल-मौत फ़क़ाल लहुम अल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम, है ना, वहाँ पे खरजू आ गया है। देखिए, खरजा खरजा खरजू वो सब निकले, वो सब निकले, हो गया ऐसे। इज इट जैद अलिफ? नहीं, इसको पता क्या बोलते हैं अलिफ, अलिफ को? इसको आप देख सकते साइड में, इसको बोलते हैं अलिफुल इस्नैन। क्या बोलते हैं? अलिफुल इस्नैन, ऐसे लिखेंगे आप, अलिफुल इस्नैन। अच्छा, क्वालिटी आती है साफ, मतलब जूम मीटिंग में, मतलब वीडियो क्वालिटी ना, ये ऑडियो क्वालिटी साफ आती है? वीडियो आता होगा साफ, ऑडियो क्वालिटी आती है साफ, मतलब ये बताओ चाहिए लैग वॉइस। अलिफुल इस्नैन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अलिफुल इस्नैन। ऐसा अलिफ जिससे हम बयान करते हैं दो चीज़ों के बारे में। क्या करते हैं बयान? दो चीज़ों के बारे में, यानी कि हम बोलते हैं, ये कहता है इंडिकेट दो चीज़ों की ओर, दो इंसानों की ओर। अलिफुल इस्नैन। अब चलिए, खरजा खरजा वो दो मर्द निकले, अब देखिए खरजू वो सब मर्द निकले। खरजू है ना, फ़अलू के वजन पे, फ़अला फ़अला फ़अलू, या खरजा खरजा खरजू। अब जो यहाँ पे वाव है ना, इसको बोलते हैं, आप ये लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं वावुल जमा। क्या बोलते हैं? वावुल जमा। ऐसा वाव जो जमाअत पे दलालत करता है, मतलब एक जमाअत है, लोग बहुत सारे हैं। खरजा खरजा खरजू वो सब निकले, जमाअत एक निकली है। तो ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, खरजा खरजा खरजू। सर आफ्टर एंडिंग द कोर्स कैन वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कुरान ग्रामेटिकली वर्ड बाय वर्ड? हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह, क्यों नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि इसको बहुत टाइम लगेगा पढ़ने में, शायद 3 मंथ लग सकते हैं कोर्स को, क्योंकि हम पढ़े ना आहिस्ता आहिस्ता ही, इसीलिए। पता ही नहीं, अब देखेंगे, वल्लाहु आलम। अगर आप पढ़ते अच्छे से घर में तो मुझे ज़्यादा कम टाइम, लेकिन मैं रिविजन करता हूँ ना वापस से, फिर इसलिए लगता है थोड़ा ज़्यादा टाइम। वैसे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आहिस्ता ही पढ़ना चाहिए इंसान, वही अच्छा रहता है हमेशा। अत्तअन्नी मिनल्लाहि वल उजलतु मिनश शैतान। तो इसीलिए वावुल जमा, आप तक इसको बोलते हैं वैसा वाव जो कहते हैं दलालत बहुत सारे मर्दों के ऊपर, वावुल जमा। खरजा खरजा खरजू वो सब मर्द निकले, बहुत सारे। अब देखिए एक और बात, अब यहाँ पे ना ये वाव, ये क्या है? मुस्ततिर फाइल, या मुस्ततिर ये ना फाइल, यहाँ पे वाव फाइल होता है, ये ना सफिक्स हो गया ऐड यहाँ पे एंड पे, ऐसे वाव। अब बोलेंगे यहाँ पे अलिफ क्यों लिखा हमने, ये वाला अलिफ? पता है क्यों लिखते हैं वाला अलिफ? देखिए इसे यहाँ पे लिखा है रीजन इसका। यहाँ पे बोल रहा है, ये अच्छी चीज बोल रहा है कि दिस अलिफ जो है, दिस अलिफ इज कॉल्ड अलिफुल विकाया, इसको बोलते हैं अलिफुल विकाया। किस अलिफ को? इस वाले अलिफ को, जो बस लिखते हैं पढ़ते नहीं है। अलिफुल विकाया मतलब होता है अलिफ ऑफ प्रोटेक्शन। विकाया बोलते हैं शील्ड को बोलते हैं, असली विकाया तकवा बन गया ना, इससे गुनाहों से बचना।
परहेजगारी करना, शील्ड रखना गुनाहों के दरमियान, खुद के दरमियान में। तो अलिफ उल विकाय का तो अलिफ ऑफ प्रोटेक्शन, इट प्रोटेक्ट्स द वाव, ये अलिफ जो है वो वाव को बचाता है फ्रॉम बीइंग मिस्टेकन फॉर द कंजक्शन व, कि हमें ये मुगालता ना हो जाए कि हम समझेंगे कि जो वाव है ना ये वाला, ये कंजक्शन वाला वाव है, यानी कि वाव पर वा, एंड उसको बोलते हैं कंजक्शन, हर्फ अत्फ उसको बोलते हैं, हर्फ अत्फ। इट इज़ रिटन बट नॉट प्रोनाउंस्ड, ये अलिफ लिखा जाता है पढ़ा नहीं जाता है। अब क्यों लिखा जाता है? ताकि हमें जहन में ये मुगालता ना हो जाए कि इस वाव पे ज़बर है। अगर अरब डालेंगे ही नहीं, क्योंकि अरब की वाली किताबों में, अरबी किताबों में अरब होते ही नहीं है, हम डालते फिर अजमियों के लिए, हम नहीं मतलब जो डालते हैं। तो यहाँ पे वाव पे क्या है? जज्म, सुकून। क्यों यहाँ पे वाव पे सुकून है? क्योंकि बस है सुकून। अब जब वाव होती है सुकून तो उसके बाद रस्म खत बोलता है लाइन डाल, एक अलिफ डालो साथ में, ताकि मुगालता ना हो जाए कि ये हर्फ अत्फ है। अगर समझ जाएगा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब खरजत जो है ना, आप बोलेंगे यहाँ पे जो ता सफिक्स यहाँ पे ऐड हो गया एंड पे, यानी कि वो एक औरत निकली खरजत। आप बोलेंगे कि यहाँ पे जो ये ता है ना, ये ता यहाँ पे फाइल है, लेकिन नहीं, यहाँ पे फाइल मुस्ततर है, छुपा हुआ है। क्योंकि इसके केस में, यानी कि खरजा के केस में, इनके गायब के केस, गायब मुज़क्कर मुफरद है ना, और गायब मुअन्नस मुफरद के केस में जो ये होता है ना फाइल, वो होता है मुस्ततर, छुपा हुआ होता है वो फाइल, ठीक है, वो होता है छुपा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो ता है ना, ये नहीं है फाइल, यहाँ पे ये ता, ठीक है। यहाँ पे जो ता है ना, इसको बोलते हैं ता उत-तनीस। क्या बोलते हैं? ता उत-तनीस। ऐसा ता जिससे हम बयान करते हैं कि ये मुअन्नस का सेगा है। ता ऑफ फेमिनाइन मतलब मुअन्नस की अलामत, क्या बोलते हैं? अलामत उत-तनीस। ता उत-तनीस, या इसको बोलते हैं अलामत उत-तनीस, ऐसे, अलामत उत-तनीस, ठीक है। खरजा खरजा खरजू, खरजत वो एक औरत निकली। अब देखिए, खरजता वो दो औरतें निकली, फिर से अलिफ हो गया ऐड, इसको क्या बोलते हैं? अलिफुल इस्नैन, अलिफुल इस्नैन। ऐसा अलिफ जिससे हम ड्यूअल फॉर्म बयान करते हैं वर्ब के अंदर। खरजता, फिर खरजना, वो सब औरतें निकली है ना, फ़अलना के वजन पे, खरजना, वो सब औरतें निकली। अब जो यहाँ पे इन्होंने ना, इसको आप लिख सकते हैं इस नून को, इस नून को पता है क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नून निस्वा। क्या बोलते हैं? नून निस्वह, निस्वह। ऐसे में लिखूंगा साइड में साफ साफ, कहाँ पे लिखूंगा मैं? जगह ही नहीं बची यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे ऐसे, नून निस्वह। अब काम लिखे हैं सारे, काम जरूर लिखना ही वाला जो यहाँ पे लिखा नहीं है। नून निस्वह इसको बोलते हैं, नून निस्वह, नून ऑफ फेमिनाइन, फेमिनाइन नून उसको बोलते हैं, क्योंकि ये करता है जमात, एक औरतों की जमात, निस्वह, औरतों की जमात, निसा बोलते हैं ना वुमेन को करता है दलालत उनकी ओर। तो खरजना, वो सब औरतें निकली। अब यहाँ पे क्या है? सफिक्स न, और वही फाइल भी यहाँ पे होता है। अब बहुत आसान है ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंति अंतुमा अंतुना के हिसाब से यहाँ से भी आ जाता है। देखिए, खरजता, तुम एक मर्द निकले, ठीक है, यहाँ पे तक है सफिक्स और तक है फाइल, ऐसे ये सारा सफिक्स है और सारा कुछ फाइल भी है, ठीक है। देखिए, खरजता, तुम एक मर्द निकले, खरजतुमा, तुम दो मर्द निकले, खरज तुम सब मर्द निकले। देखिए, तुम उर्दू में बोलते हैं तुम। खरजते, तुम एक औरत निकली, खरजतुमा, तुम दो औरतें निकली, खरजतुन्ना, तुम सब औरतें निकली, खरजतु, मैं एक मर्द या मैं एक औरत निकली, खरजना, हम दो मर्द या हम दो औरतें, या हम सब मर्द या हम सब औरतें निकले, खरजना, ठीक है। मैंने आपसे कहा था ना कि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने अगर क्या होगा ना, एक लेक्चर स्किप, किसने अगर क्या होगा खाली एक लेक्चर स्किप, वल्लाही वो नहीं समझ पाएगा, आगे कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। अरबी इसको ही बोलते हैं, अरबी नहीं समझ आता है जब तक आपने सारा नहीं देखा होगा, मैंने देखा नहीं मतलब पढ़ा होगा। स्किप कुछ नहीं करना है इस पे, क्लास क्लास कुछ भी नहीं। मैं करता रिकॉर्ड ना, ऑफलाइन क्लासेस में भी क्लास रिकॉर्ड करता जब बच्चे पढ़ने आते नहीं थे, क्योंकि ये था, ये ज़रूरी होता है इसमें, स्किप नहीं करना होता है यहाँ पे कोई लेक्चर बीच में। इसमें करता हूँ रिकॉर्ड भी साथ में, ताकि आप फिर देख सकते हैं, ठीक है। तो जो आज पढ़ने आ गए उनको चाहिए कि वो हमेशा पढ़ने के लिए आ जाए इंशाल्लाह, जब तक हम कुरान समझ पाएंगे अच्छे से इंशाल्लाह। क्योंकि है ना, होगा इस टाइम पे हर एक को पढ़ने का। अच्छा, पता नहीं बात क्यों नहीं पढ़ने आ रहे उनको, शायद समझ नहीं आ गया मेरा क्या मसला हो गया उनको। अच्छा, ऑल फाइल इन दिस ग्रुप हैव सम वॉवेल साइन ऑन देम, सो दिस ग्रुप इज कॉल्ड मुतहर्रिक। देखिए क्या बोलते हैं जो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब खरजना के बाद देखिए, खरजना, नहीं कैसे बोलना है इसे, खरजना, फिर खरजता, खरजतुमा, खरजतुम, खरजते, खरजतुमा, खरजतुन्ना, खरजतु, खरजना, इन सारों को पता क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं मुतहर्रिक। क्या बोलते हैं? मुतहर्रिक।
क्या बोलते हैं, मुतहर्रिक। अब मुतहर्रिक का मतलब क्या होता है? मुतहर्रिक का मतलब होता है जिस पे हरकत आ जाती है। देखिए, न, त, तुमा, तुम, ति, तुमा, तुन्न। ठीक है, तु, ना, तु, ति, तु, तु, त, न। इस प्रकार की हरकत। तो जितने यहाँ पे ना फाइल है, न, त, तुमा, यहाँ पे तू फाइल होता है असल में यहाँ पे। मतलब मोर प्रिसाइसली यहाँ पे तू फाइल है, ना कि तुम, तुमा। यहाँ पे तू फाइल है, यहाँ पे ति फाइल है, यहाँ पे तू फाइल है, यहाँ पे तू फाइल है, यहाँ पे तू फाइल है, यहाँ पे ना फाइल है। इन फाइल को पता क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं मुतहर्रिक ग्रुप। मुतहर्रिक मतलब होता है इन पे हरकत आ जाती है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हरकत है सारों पे। लेकिन जो इस पर नहीं, ये वाला ग्रुप यहाँ आप देखिए, खरजा, खरजा, खरजू। थोड़ा मिटाना पड़ेगा, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है ऐसे वरना आपको। देखिए, अब देखिए क्या चाहिए आज का वीडियो, क्योंकि थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स था। देखिए, खरजा, खरजा, खरजू। फिर खरजत, खरजता, खरजना। देखिए, अलिफ पे क्या है? सुकून। वाव पे क्या है? सुकून। अलिफ पे क्या है? सुकून। तो यहाँ पे ना सुकून, सुकून, सुकून इन तीनों पे। ये तो यहाँ तो पता ही है, मुस्ततर है, यहाँ पे छुपा हुआ है फाइल। इसको बोलते हैं साकिन। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं साकिन ग्रुप। साकिन मतलब होता है ऑल द फाइल इन दिस ग्रुप आर इधर मुस्ततिर, या तो यहाँ पे फाइल मुस्ततिर है, जैसे खरजा में और खरजत में होता है मुस्ततिर, हुआ और हिया के केस में रखिए आप याद। और हैव सुकून इन दम, या तो उनमें सुकून होती है। देखिए यहाँ पे अलिफ पे क्या है? सुकून। वहाँ पे क्या है? सुकून। अलिफ पे क्या है? सुकून। सो दिस ग्रुप इज कॉल्ड साकिन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? साकिन। ठीक है। अब आपको होमवर्क है। होमवर्क ये है कि आपको बनाना है इन पांच फेलों का ना गर्दान फुल लिखने को कॉपी के ऊपर। ठीक है, हम बनाएंगे अभी। देखिए, जहाबा वो एक गया, जहाबा वो एक मर्द गया, जहाबा वो दो मर्द गए, जहाबू वो सब मर्द गए, जहबत वो एक औरत गई, जहबता वो दो औरतें गई, जहबना वो सब औरतें गई, जहबता तुम एक मर्द गए, जहबतुमा तुम दो मर्द गए, जहबतुम तुम सब मर्द गए, जहबती तुम एक औरत गई, जहबतुमा तुम दो औरतें गई, जहबतुन्न तुम सब औरतें गई, जहबतु मैं एक मर्द या औरत गई, जहबना हम सब गए। ठीक है। आप बनाएंगे कल, मैं करूँगा चेक होमवर्क। चेक में कैसे करता हूँ, नहीं मतलब आपको होमवर्क करना है क्या? ذهب जलसा नसरा समिआ और करुमा। अब बनाएंगे फुल गर्दान इसको। जलसा, जलसा, जलसु, जलसा, जलसता, वैसे ही नसरा, नसरा, नसरु, समिआ, समिआ, करुमा, करुमा। पूरा ठीक है इंशाल्लाह। विद मीनिंग लिखेंगे आप, ताकि आपको याद भी रहेगा। हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह, आपको शौक है तो इसलिए आप इंशाल्लाह पढ़ पाएंगे अच्छे से। बाकी को पता है शौक खत्म हो गया आदों को। बस डरना नहीं चाहिए, कुछ लोग डर जाते हैं अरबी से, भाग जाते हैं बीच में ही। अच्छा वो, अच्छा यहाँ लिखा भी आपको साइड देखिए, इसने यहाँ पे बनाई हुई गर्दाना खुद ही, आप इसे नकल भी कर सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा नकल नहीं करना, नकल करना बाद में, खुद ट्राई करने के बाद। ठीक है। जहाबा समी आकरमा के फुल गर्दान इसने यहाँ पे लिखी है। एक और बात आप यहाँ पे समझिए ये चीज़ के, हाँ एक एप्लीकेशन भी आती है, उसका नाम सर्फ है, मैं आपको सेंड करता हूँ ग्रुप में। सर्फ एप्लीकेशन जो है वो दिखाती है पूरी गर्दान। आप वहाँ देखेंगे खाली जा हा और बा लिखेंगे रूट वर्ड, वो निकालती है पूरी गर्दान। ठीक है, मैं दिखाऊंगा आपको वो एप्लीकेशन सर्फ। ये रहा वर्ब कॉन्जुगेटर ना, ये आप करेंगे डाउनलोड सारे एप्लीकेशन, इससे आपको मिलेगा हर किसी वर्ड का रूट, मतलब सारा ना। देखिए अभी हमें इतनी पढ़नी है कॉन्जुगेशन, इतनी ज़्यादा हमें कॉम्प्लेक्सिटी अभी आएगी। पहले माजी, मुजारे, मारूफ, मुस्बत, उसका वो, फिर नफ़ी करनी है, फिर दोनों सकीरा लाना है। लेकिन बेस तो यही है ना, बेस अभी से स्टार्ट हो रही है ना। तो इसलिए यहाँ पे स्किप कुछ नहीं करना है। मैंने आपको कहा ना कि यहाँ से क्या आप कुरान समझ पाएंगे इतना, इतने परसेंट। क्योंकि सरफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कुरान समझ पाएंगे आप उतने परसेंट, 100%। लेकिन मसला है कि आपको हर दिन पढ़ना है और कोई स्किप नहीं करना है बीच में। क्योंकि मुझे हो गया था बहुत एक्सपीरियंस पढ़ाते पढ़ाते, मुझे हो गया लगभग 2-3 साल अभी पढ़ाते पढ़ाते। तो इंशाल्लाह आपको अच्छा फ़ायदा आ जाएगा कोर्स ख़त्म करने के बाद। ये देखिए, मैंने आपको सेंड किया ऐप की लिंक ग्रुप में। तो फिर भी आप बनाएंगे खुद गर्दानी, ठीक है? ज़रूरी बनानी है वल्लाह, वरना समझ नहीं आ जाएगा अच्छे से। फिर गर्दानी खुद बनानी है। हम जाएंगे वापस तमीम सरफ के ऊपर। एग्जाम्पल से और दूँ इसके बारे में अगर आप बोलेंगे, या इतनी काफ़ी है फिलहाल? है ना ये सारी? मैं और लिखूँ फिर एग्जाम्पल्स? बताइए। हाँ देखिए, मैं लिखता हूँ बहुत सारे, आप लिखिए कॉपी पे, ठीक है? आप लिख सकते हैं पहले ही, सबह का मतलब क्या होता है? सबह का मतलब होता है स्विमिंग करना। स्विमिंग, टू स्विम। ठीक है, स्विमिंग करना सबह। और आप लिखेंगे कतबा। कतबा का मतलब होता है उसने लिखा, है ना? किताबत किसको बोलते हैं? खतो किताबत होता है लिखना। कतबा उसने लिखा, ही रोट। या आप लिख सकते हैं, क्या बोलेंगे? आप बोलना कुछ भी, मैं बताऊंगा ऐसे अरबी में। कतबा
اچھا فتح لکھ سکتے ہیں آپ، فتح کا مطلب ہوتا ہے اس نے کھولا، ہی اوپنڈ، فتح، اس نے کھولا، بولتے ہیں نا اسے فتح دی، اسے وکٹری ہے میری، اس مطلب کھولا دروازہ، ہم نئے ملک کے اڑ کے، ویسے سمجھ رہے ہیں اس چیز کو. فتح کا مطلب ہوتا ہے ہی اوپنڈ، اس نے کھولا. مفتاح ان کو، اس کو بولتے ہیں چابی کو، کھولا جو کھولتی تالے کو، مفتاح، ہی اوپنڈ. اور آپ لکھ سکتے ہیں جو آسان ہو گیا وہ ہو گیا کتب، فتح کو بنائیں گے آپ، اور بنائیں گے آپ ایسے ہی رسب، وہ فیل ہو گیا، ہی فیلڈ، رسب، ہی فیلڈ، ہاں، رسبا. ٹھیک ہے، اوپر آنا خود ہی سارا کچھ، رسبا رسبا رسبو رسبت رسبتا رسبنا رسبت رسبتما رسبتم رسبتی رسبتما رسبتن رسبتو رسبنا. اگر سمجھ نہیں آ گیا تو بول سکتے ہیں مجھے، واللہ بول سکتے ہیں، میں بولتا ہوں. اور ویسے سمجھ کچھ نہیں، بس یاد کرنے کو اٹھا. اور نجح، نجح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کامیاب، وہ ہی پاس دا ایگزامینیشن، وہ کامیاب ہو گیا. نجح، ناسا نجح 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 نجحت نجحت نجحنا نجحت نجحت نجحتم، نجحت 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 نجحنا. ٹھیک ہے، ہی پاس دا ایگزامینیشن. اور آپ لکھ سکتے ہیں رسما، ہاں یہ بیسک بیسک ہے نا. پہلے رسما، رسما کا مطلب ہوتا ہے اس نے ڈرا کیا، ٹو ڈرا. ٹھیک ہے، اس نے ڈرا کیا، رسما. اب بنائیں گے فل. ضربا، ہاں بالکل، ضربا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس نے مارا، ٹو اسٹرائک، مطلب ایسے کرنا، اس کو بولتے ضربا. ایسے کرنا ضربا، اس کو بولتے. گھوسے مارے کو کیا بولتے ہیں؟ کوئی بول سکتا ہے؟ ضرب ہو گیا اسٹرائک کرنا، مطلب ایسے اسٹرائک کرنا، ایسے کرنا. اس کو بولتے ہیں وقزہ، شاید کیا بولتے ہیں قرآن میں ہے نا وہ سورہ اس میں سورہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نا وہ وقزہ، شاید وقزہ، کیا ہوا آگے قرآن کی آیت؟ وقزہ ہو موسیٰ، اچھا وقزہ بولتے ہیں مکہ مالک، وقزہ ضربہ. اچھا میں کروں گا سینڈ 100 ایگزامپلس، اب بنائیں گے 100 ایگزامپلس کو. ٹھیک ہے، ابھی کروں گا میں سینڈ 100 ایگزامپلس، اب بنائیں گے 100 کو آپ. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو یاد رہے گا. گردان بہت مشکل ہے، مشکل نہیں ہے، بس یہ یاد کرنی ہے. یاد کیا، رکھنی ہے سامنے گردان. اور یہ ایگزامپل